नमस्कार मित्रों, थ्रू लिटरेरी लेंस के इस भाग में मैं राजेश आसुदानी रकीब। Hello friends, this is Dr. Vinod Asudani once again in through literary lens. और हम आपके पास आते हैं अलग अलग साहित्यिक विधाएं लेकर, कभी कहानी, कभी उपन्यास, कभी नाटक, कभी स्वरचित कोई रचना, कभी किसी और की गजल। ये सब सारी विधाओं से आपका परिचय हो और उसे आप अप्रिशिएट कर पाएं, हम समझ पाएं उस चीज को, क्योंकि लिटरेचर बड़ी गहरी चीज है विनोद जी। हम सोचते हैं कि बस कुछ लिख दिया गया, समथिंग इज देयर एंड जस्ट इट इज फॉर एंटरटेनमेंट वैल्यू, बट इट्स नॉट लाइक दैट। No, literature is very much connected to life, right? It brings life to the light, right? And it provides us with an opportunity to understand life at higher level, Rajesh ji. And many times it describes what is happening without really commenting on it, whether it is right or wrong. It just indicates that this is happening. Now, whether you want it to happen or what are the implications of what is happening, whether you want it to happen or not, that is just for socio-cultural reality to take shape, and many other variables. A good literary piece, Rajesh ji, I believe that it broadens and widens your consciousness. And it operates at multiple levels. It can be approached from different viewpoints. Maybe Marxist viewpoint emphasizes the relation between the production sources of production between the two classes, bourgeoisie and proletariat. Whereas the Freudian approach or psychoanalytic approach would hint at our suppressed desires and expression of the repressed desires and suppressed desires, how they are expressed in various ways. And the sociological approach tells us how individual has to establish harmony with the social organizations and social institutions. Historical approach would give you the historical background, how that piece came to be and what implications it might have had when it was produced. And the subaltern literature brings forth the sensibility of the marginalized sections of the society and how it is to be projected, how it is to be received by the people. Yes, and feminist literature would concentrate on the gender aspect of various literary creations, how the gender is shaped and how the gender shapes various literary pieces. And all these concerns, they are not consciously ingrained in the piece of writing. They automatically are there depending upon the choice of the subject and the temperament of the writer and the socio-cultural situations under which he or she is creating something. And a piece of literature can be approached from the multiple points of view. It is not the property of a particular domain of criticism. And some new domains like techno-criticism, like theo-criticism, like disability discourse, they are also gaining ground. Yes, nowadays. Definitely some scholars are working in those domains. But Rajesh, you are going to discuss today one Hindi story by Malti Joshi. Malti Joshi. You know, Malti Joshi is a well-known name in the field of Hindi literature, and she really explores, right, the complexities of the human relationships. बिल्कुल। और उनकी जो कहानी आज हम जो बात करेंगे, बड़ी ही एक तरह से मार्मिक कहानी में कहूँ और यथार्थवादी कहानी कहूँ, आज जो समाज की हमारी व्यवस्था है, आज जो होता है, उसको चित्रित करती है। जी बिल्कुल। कोविड-19 में तो हम वो ऐसी जो सिचुएशन मालती जी यहाँ पर ला रही है, उससे हमारा परिचय हो चुका है। तो इस संदर्भ में भी देखें राजेश जी कि यह कहानी हमें दिलों को छू लेती है। कहानी बड़ी साधारण सी है, गुड़िया है। ओसर में बीच, शीर्षक में टाइटल इटसेल्फ इंट्रिग्स यू। तो जो इस कहानी की जो कहूँगा कि मुख्य पात्र है, नायिका तो नहीं है लेकिन पात्र है, गुड़िया है, और उनको फोन द्वारा सूचना प्राप्त होती है कि उनके चाचा जी, निकी चाचा जी यूएसए में नहीं रहे, कनाडा में नहीं रहे और बड़ी व्यथित हो जाती है क्योंकि चाचा जी के साथ बड़ा स्नेह है उनका बचपन से लेकर। निकी नाम उन्हीं का गुड़िया का ही दिया हुआ है, निखिल नहीं कह पाती थी बचपन में, इसलिए निकी, सबने निकी कहना शुरू। और चाचा जी ने कभी विवाह नहीं किया और वो कनाडा में सेटल हो गए और 1-2 साल के बाद भारत आते हैं और सभी अपने भाइयों से, यानी गुड़िया के बाकी चाचाओं से भी मुलाकात करते हैं, अपनी भाभियों से मुलाकात करते हैं, भतीजियों के लिए बहुत सारे तोहफे लाते हैं और वो आते हैं तो एक सेलिब्रेशन का माहौल सा बन जाता है। जब तक वे रहते हैं एक मेला सा लग जाता है घर पर। बिल्कुल। तो अब वो सारी यादें गुड़िया के जहन में आने लगती हैं जब उसे पता चलता है कि निकी चाचा अब इस दुनिया में नहीं रहे और नेचुरली उनका दिल, उनका दिमाग इस वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि चाचा जी नहीं है। बॉडी ये शब्द भी अपने मुंह से नहीं कहना चाहती जी, क्योंकि बॉडी से अर्थ है कि मृत शरीर। सो वो जो परायापन, वो जो अलगाव आ जाता है,
तो वो कॉन्शियसली बॉडी इस शब्द हम उन्हीं को यहाँ ले आए, कहती हैं उनको कनाडा से उन्हीं को यहाँ ले आए। तो बाकी जो चाचा हैं गुड़िया के, वो ये कहते हैं ये बड़ी इम्प्रैक्टिकल सी बात है, 2 लाख से ज्यादा का खर्च आएगा और कौन इतना खर्च कर पाएगा, और फिर लाने से मतलब भी क्या। और गुड़िया कहती है कि कोई बात नहीं, हम लोग शेयर दे देंगे सभी मिल करके यदि पैसा खर्चा करें, किंतु चाचा जी की डेड बॉडी को यदि हम भारत ले आए। लेकिन गुड़िया के दोनों चाचा इस बात के लिए तैयार नहीं होते हैं। कोई तो अपनी पत्नी की वजह से कि नहीं उनको ठीक नहीं लगेगा, चाची को गुड़िया की ठीक नहीं लगेगा, और कोई कहते हैं कि नहीं ये तो उससे होगा क्या, उनका कोई सगा तो मतलब है नहीं, बच्चे तो है नहीं उनके, और फिर है तो डेड बॉडी आफ्टर ऑल। तो दिस गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू गुड़िया टू पॉन्डर over the philosophy of life. जी। So what happened to that love and affection that Chacha ji used to shower upon all the people, all the relations? तो उसका क्या हुआ? जो स्नेह सबको मोहब्बत देते थे, उसका हुआ क्या? और एक और पहलू गुड़िया के जहन में अचानक उभरता है आधी कहानी के बाद, विनोद जी। जी बिल्कुल। ये बात होती है कि जब भोपाल आते थे चाचा तो एक और आकर्षण और था। गुड़िया बड़े सजाने संवरने लगती है अपने घर को। चाचा जी जब आते हैं ना, तो पर्दे बदल जाते हैं, नए कॉकरी आ जाती है, मेज का कवर बदल जाता है, तो उनके पति उनको थोड़ा टोकते हैं कि तुम्हारे लिए चाचा जी यहाँ नहीं आ रहे हैं, किसी और के लिए आ रहे हैं, शेफाली आंटी के लिए आ रहे हैं। तो शेफाली उनकी सहपाठी, इसकी निखिल चाचा की सहपाठी थी, और फिर उनकी कहीं और शादी हो गई, और निखिल चाचा ने भी शादी नहीं की, शायद शेफाली की वजह से शादी नहीं की, गुड़िया सोचती है। पर जब भी वो भोपाल आते हैं तो शेफाली आती हैं, मिलती हैं, ये शेफाली के पास जाते हैं, दावतें होती हैं, वो लोग इनके यहाँ आते, हालांकि क्लास डिफरेंस है बहुत, तो गुड़िया को लगता है कि वो चाचा जी के कारण ही बस वो हमको सहती हैं, शेफाली आंटी जो हैं, अदरवाइज आना जाना वैसे तो नहीं रखती हैं हमारे साथ। तो लेकिन जब चाचा जी आते हैं तो कहीं मुझे राजा जी ऐसा लगता है गुड़िया को कि ठीक है कि निकी चाचा के भाई लोगों को शायद उतना सदमा नहीं पहुंचा, शायद शेफाली के मन में वो आर्द्रता, वो स्नेह, वो अपनापन दिखाई देगा, वो अलग प्यार है वो तो ये शेफाली को फोन करती हैं, और पहली बात तो पार्टी चल रही होती है तो नहीं बता पाती हैं, दूसरे दिन किसी तरह शाम को बताने का प्रयास करती हैं, तो बड़ी मुश्किल से फोन उठाती है शेफाली, और बड़ी हड़बड़ी में रहती है, क्लब जाने की हड़बड़ी में होती हैं। तो अच्छा सुन के थोड़ा दुख तो होता है उनको, पर कहती हैं ठीक है, हॉर्न बजा रहे हैं हस्बैंड बराबर, मैं बाद में आराम से बात करूंगी, ठीक है। तो कैजुअली, जैसे कि वो भी इसी तरह से जैसे चाचाओं ने लिया, वैसे शेफाली ने भी उस चीज को लिया, हाँ चलो ये तो आनी जानी है, मरना जीना तो लगा रहता है, जैसे हम कहते हैं ना भाई, जैसे कुत्ता बिल्ली कोई मर जाता है रास्ते में। बिल्कुल राजेश जी, अभी हमने कोविड-19 में देखा कि पिता का शव पुत्र लेने को तैयार नहीं है, घर वाले उस शव को हाथ लगाने को तैयार नहीं है, म्युनिसिपैलिटी वाले उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, या हॉस्पिटल से सीधे शवों को जला दिया जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिन संबंधियों के साथ, जिन मित्रों के साथ हम प्यार करते हैं, अपनापन देते हैं, सारी दौलत उन पर लुटा देते हैं, क्या मरने के बाद उनके दिल में हमारे लिए थोड़ा सा भी स्नेह नहीं रहता क्या? तो ये एक बड़ा प्रश्न कहानी हमारे सन्मुख खड़ा करती है कि भाई कम से कम जिनके साथ हमारे ऋणानुबंध जिसको कहते हैं, जो स्नेह संबंध हैं, प्रेम संबंध हैं, कम से कम उनके लिए तो हमें एक लम्हा रुक के थोड़ा सांस लेनी चाहिए जब वो हमसे दूर चले जाते हैं, क्योंकि ये हम अगर इन द स्ट्राइड ऑफ लाइफ ऐसे अगर लेते रहें कि हाँ ठीक है तो लगा रहे, ये बड़ी अजीब सी वास्तविकता सामाजिक आज हो गई है। सिर्फ यहाँ तक मैं कहूँगा विनोद जी कि अपने जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं उनको छोड़ के बाकी अगर कोई गुजर भी जाता है तो हम एक क्षण भी रुक के अपने थोड़ा उदास नहीं होना चाहते, बने बनाए प्रोग्रामों को हम नहीं बिगाड़ना चाहते। कि मौत की ताकत क्या इतनी कम हो गई है कि क्षण भर के लिए जिंदगी को रोक भी ना पाए। जैसे क्लब जा रही थी शेफाली, कहीं वो अगर वो उस दिन न जाती अपने पति को कहती है अगर आप चले जाइए कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे मित्र ही कहूँ मैं कि मेरे मित्र नहीं रहे तो कम से कम मैं थोड़ा 2 घंटे शांत रहकर उनकी याद करना चाहती हूँ, इतना ही कर लेती, या भाई लोग से मिलने चली आती, या भाई लोग मिलकर के यदि उनके शव को भारत ले ही आते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो मैं तो वही कहूँगा कि अगर तुम भी गुजरो इधर से कभी और पड़े मेरी तुरबत पे नजरें तुम्हारी, जरा तुम तो रुकना मुझे याद करके, अगरचे भुला भी थे दुनिया ये सारी। वाह वाह। तो यहाँ तो साहब तो निकी साहब को तो वो भी नसीब नहीं हुआ कि उनकी जो सखी थी, स्वीट हार्ट थी, कम से कम क्लब जाना मुलतवी कर देती, तो वो भी नहीं हुआ, इतनी भी श्रद्धांजलि हो जाती। तो संबंध कोई भी हो, शायद वो कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से वो खोखला ही है। और ये मालती जोशी जी कहती कि ओसर में बीज, चाचा जी जब गुड़िया आखिरी जब वाक्य कहती है कहानी का कि चाचा जी आपने तो प्यार के बीज बड़े छितराए, बड़े डाले, लेकिन कहीं ना कहीं ओसर में पड़ गए, तभी तो वो पनप नहीं पाए। तो बीज अगर पनपना है
तो उसको वही गीली मिट्टी के साथ पोषण चाहिए, जमीन का ओसर में अगर बीज पड़ जाएगा तो वो तो वहीं मर जाएगा। तो प्रेम भी इसी तरह है, प्रेम भी एक तरफा कभी नहीं पनप सकता, उसका कोई कोई मतलब नहीं रह जाता। दिल को खुश करने के लिए शायद ख्याल अच्छा हो कि हाँ। प्रेम है हमें किसी से, किंतु इफ इट इज नॉट रेसिप्रोकेटेड परहैप्स दैट लव वुड डाई आउट इन द वाइल्डरनेस वन डे। बिल्कुल। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति है जो आजकल की सामाजिक स्थिति है। भी मैं चाहूंगा कि ये कहानी हमें पोस्ट मॉडर्न बिटर रियलिटी के साथ भी परिचय कराती है, जो कड़ी वास्तविकता है हमारे जीवन की, जो आर्थिक दबाव है, चाहे हमारा भाई क्यों है, बहनी क्यों नहीं है, प्रेमी ही क्यों नहीं है, किंतु क्या हम 2 लाख रुपया खर्चा करें और उसके डेड बॉडी को सिर्फ यहाँ ले आए, क्या फायदा होगा? यदि ये सोचे तो फायदे और नुकसान की यदि बात करें तो डेफिनेटली कोई फायदा नहीं होगा। तो नाउ द लाइफ हैज कम टू दैट ऐसे जगह पहुंच गई है जिंदगी जहां हमें लॉस एंड प्रॉफिट की भाषा ही दिखती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो कैपिटलिज्म की जो फिलॉसफी है, कैपिटलिज्म सिर्फ मार्केट तक सीमित नहीं है। कैपिटलिज्म इज इंटायर आइडियोलॉजी एंड इट हैज परकोलेटेड इनटू आवर इंटीमेट रिलेशंस एज वेल। ये जो लेखिका ने यहाँ आयाम दिए हैं ना, एक तो फैमिलियल टाइज और दूसरा जो रोमांटिक सा, तो ये वेल राउंडेड कहानी प्रतीत। तो ऐसा नहीं कि एक ही क्षेत्र में कहीं ह्रास हुआ है। ऐसा नहीं कि उनके भाइयों को दुख नहीं होता किंतु उसकी प्रेमिका को दुख हो जाता है, ऐसा भी नहीं, ऐसा नहीं होता है, किसी को नहीं होता। हर क्षेत्र में ह्रास जो वैल्यूज का हो रहा है। और गुड़िया की ट्रेजेडी है, सविता की ट्रेजेडी। अब सविता को क्यों, तो भतीजी है, ठीक है, बचपन की याद है, पर उसको लगता है यानी कहीं ना कहीं अब भी वो वैल्यूज, वो जो मैं ओरिएंटल वैल्यूज कहता हूँ हमेशा इसी को, तो ओरिएंटल वैल्यू गुड़िया के रूप में आज भी जिंदा है। यानी कहीं ना कहीं ऐसे लोग आज भी हैं गुड़िया जैसे, जिनके हृदय के अंतर्गत वही स्नेह हमें दीख पड़ता है। और ये बड़ी बात है, जैसे शुरू में कहती है ना मनोज जी, वो जब सुनती है फोन कॉल में नहीं रहे, अच्छा ये पूछ रहे हो, मैं क्या पूछूं, तो 2 बच्चों की माँ हूँ, सविता हमेशा गुड़िया बनी रहूंगी क्या? लेकिन हमेशा गुड़िया ही बनी हुई है वो, ये भी हमें देखने को आता है, हमेशा गुड़िया बनी हुई है। Childlike and being a childlike is something that has to be appreciated in the society. Unfortunately we are discounting these people कि भाई बचकाने सी बात करती है। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसे लेयर्स मालती जी हमारे सामने ले आती हैं जिंदगी के, जो जिंदगी के आपाधापी में हमसे छूट जाते हैं। और ये भी हो सकता है कनाडा में उनकी डेथ होती है, तो कहीं ना कहीं ईस्ट वेस्ट थीम ये भी बात आ जाती है कि कनाडा में उनकी डेथ होती है, तो हम डेथ चाचा जी की कनाडा में होती है, लेकिन जो भारत में रहते हैं उन सारे लोगों ने वेस्टर्न वैल्यूज को अडॉप्ट कर लिया है। तो भारतीय वैल्यू तो ऐसा नहीं होता है, मूल्यों की मृत्यु तो हो गई। हम तो 12-13 दिन शोक प्रकट करते हैं, कोई मर जाता है तो यही, किसी का देहांत हो जाता है तो यही हमारे पूर्व के संस्कार हैं, पूर्व के हमारे वैल्यूज हैं। तो कहीं ना कहीं उन वैल्यूज को जिंदा रखना चाहिए। ये कहानी अपरोक्ष रीति से इनडायरेक्टली हमें एक मैसेज देती है, और यही कहानी की सफलता है, क्योंकि खुलकर कहानीकार हो या कवि हो या उपन्यासकार हो कभी नहीं कहता। लिटरेचर तो बस इशारों में कुछ कह जाता है, तो बस कहानी के हम इशारे समझें, मालती जोशी जी के इशारे समझें, और उस मानवता के आर्द्रता को, एंड द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस मस्ट फ्लो फ्रॉम वन हार्ट टू द अदर। बिल्कुल, काश बीज जो हैं प्यार के वो ओसर में न पड़े और पनपें, फूलें फलें, वृक्ष हो, यही हमारी कामना है। और फिर आएंगे किसी और कहानी, किसी और उपन्यास, किसी और नाटक या गजल या कविता के साथ। तब तक आप अपने ओपिनियन से हमें अवगत कराते रहें। नमस्कार। नमस्कार।